Needle stick injury. So needle stick injury is basically you are getting injured while you are basically injecting any medications to a patient, or either you are handling any kind of waste which is containing the used needles. So then we can call it as a needle stick injuries. So after you have got needle stick injuries, what kind of procedure you have to follow? So as a staff, you have to just remember 4 things. First one, let it bleed. So wherever you have got injured, you have to let it bleed. So ब्लीडिंग कंटिन्यूसली करने के लिए आप जेंटल प्रेशर अप्लाई कर सकते हो ताकि वो थोड़ा ब्लीड कर सके. ठीक है, थोड़ा सा ब्लीड होने के बाद आप इमीडिएटली उसको रिंज करोगे अंदर रनिंग वाटर, और आप चाहो तो सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं उसके बाद. So first one is bleed it, second one is wash it. So you have to frequently or properly wash it under tap running water, or either you can use soap and water for that. And then you have to cover it and report it. So these are the 4 things that you have to keep in mind. First one is to clean, basically you have to bleed it, then you have to wash it, and then you have to basically cover it and then report the incident to significant authorities. Like it can be your TM in your ward, or it can be your supervisors, or any higher position officer. You can report them, and after that you have to report the infection control medical officers or their team. So first you will do these kind of the things, and after that we will find out whether the patient is having any kind of infectious disease or bloodborne disease. So in that condition we can basically refer to 2 types of the module. Either we will go for the serological test, and in that serological test you have been identified for either HIV or hepatitis B. Okay? So hepatitis B, C viruses we can identify for that, or surface antigen for hepatitis we can do these kind of the test. And if your report is found to be positive, or if your patient is found to be positive, your prophylaxis will be started. Post exposure prophylaxis, that is PEP. It will started within 2 hours, and you will be referred to ICDC. Now ICDC refers to ICDC centers. क्या होता है? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स. ठीक है, तो आईसीटीसी को आपको रिपोर्ट करना होगा अगर आप बेसिकली जो सोर्स है आपका वो HIV पॉजिटिव है. ठीक है, और अगर आपका सोर्स HIV पॉजिटिव है, और साथ साथ में अगर वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, या फिर सिर्फ हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में भी आपका हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग होगी फॉर एंटीजेंस. और अगर आपका टाइट्रेशन जो है मोर देन 10 आता है, देन उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है. बट अगर आपका लेस देन 10 आता है तो फिर आपका फर्स्ट जो है हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन या C वैक्सीनेशन वो प्रोवाइड किया जाएगा. सो ये आपका रहेगा नीडल स्टिक इंजरीज के केस में. बट अगर आपका कोई एक्सपोजर होता है विद बॉडी फ्लूइड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपके आईज में कोई ब्लड स्प्लैश हो गया या कोई फ्लूइड स्प्लैश हो गया व्हाइल यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आप अपनी हैंड वॉश करेंगे, आई को इरिगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, और अगर कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज या लेंसेज आप यूज कर रहे हैं तो उसको रिमूव करेंगे. ठीक है, और अगर माउथ में चला गया है तो आप इमीडिएटली स्प्रेड करेंगे. ठीक है, और रिंस करेंगे विद वाटर्स. ठीक है, एंड देन अगर स्किन में के साथ कहीं पे भी कॉन्टेक्ट में है तो आप सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लीनिंग के लिए. तो ये है नीडल स्टिक इंजरी का प्रोफाइलेक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल हजार्ड्स, इसमें सिर्फ ये है कि कौन कौन से केमिकल हजार्ड्स हो सकते हैं. लाइक एनेस्थेटिक गैसेस हो सकती है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, मर्करी हो सकती है, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, जो आरती मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं. और इसका ट्रीटमेंट भी फर्दर जो है आरती मैम भी बताएंगी. सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज डॉक्टर आरती वर्धन मैम. प्लीज प्रोसीड विद द टॉपिक. थैंक यू सो मच. Now we will talk about treatment of biomedical waste before disposing the waste. First, chemical treatment should be done using at the least 1% or 2% sodium chloride solution. जब भी हम कोई भी वेस्ट आगे डिस्पोज करेंगे तो डिस्पोज से पहले ट्रीटमेंट करना होता है. प्री ट्रीटमेंट्स की जो बात करी थी कि डिस्पोजिंग जब होनी है तो उससे पहले प्री ट्रीटमेंट होना है. तो प्री ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे? तो उस पर हम लोग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को यूज करते हैं, वो 1% और 2%.
जैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उसमें ईटीपी में बताया था कि उसमें आप जो है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को वहां पर रखेंगे, जो उसकी अमाउंट होता है मिक्स करके, और उसके बाद उससे लिक्विड वेस्ट को आप डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके साथ में देयर इज नो नीड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर इंसिनरेटर एक्सेप्ट इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब एंड हाई इन्फेक्शियस वेस्ट। मीन्स की जो आपका कुछ वेस्ट ऐसा है जिसको आप प्री ट्रीटेड नहीं करोगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन से, जिसको आप इंसिनरेटर के लिए भेज रहे हैं। इंसिनरेटर के लिए आपके कौन कौन से वेस्ट जाएंगे उसको प्रॉपर जो है स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पर कि आपको कौन से जो वेस्ट होगा आप उसको इंसिनरेट करोगे, किसको आप आगे और भी टेक्नोलॉजी है और भी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, लाइक की माइक्रोवेव और ऑटोक्लेव। तो ये सारे प्रॉपर जो है टेक्निक्स हम यूज करते हैं वेस्ट को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए बिफोर डिस्पोजिंग। उसके साथ में जो सिरिंजेस होती है हमारी, उसके साथ में आईवी ट्यूब्स होती हैं और बॉटल्स होती हैं, तो इन सबको भी प्रॉपर हम क्या करते हैं नर्सिंग स्टेशन पे ये सारी चीजें जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं सिरिंजेस को और जो हमारी आईवी लाइंस वगैरह होती हैं म्यूटिलेट करते हैं, कट करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं ये सारी चीजें? इसलिए कि उनको रीयूज ना कर सके। बिकॉज कि आप लोग अगर कभी जो है कबाड़ी की शॉप पर जो है विजिट करो तो वहां पे बल्क में आपको आगे फ्रूट्स जो होते हैं खाली बोटल्स होती है डीएनएस वगैरह की, बहुत सारी बल्क में वहां पे रखी होती है। तो फिर उसका क्या होता है रीपैकिंग होकर के जो होती है ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है, वो इन्हीं के थ्रू की नकली मेडिसिन आ रही है। तो इसलिए इस चीज को जो है इस न्यू गाइडलाइन पे फोकस किया गया है कि आप लोग जो हमारे आईवी ट्यूब्स लाइन्स हैं, उसके साथ हमारी बॉटल्स हैं, इन सबको आप कट करके ही आप जो है वहां डिस्कार्ड करेंगे। अब प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड सेफ डिस्पोजल। बिकॉज कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसको जो है अब डिस्पोज करना है, तो डिस्पोज कैसे करेंगे सेफली, उसके साथ उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, किस वेस्ट को पर्टिकुलर किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट में आपके जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कॉन्टामिनेटेड आइटम्स हैं वो, और एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है आप कहाँ पर इनको सेग्रीगेट कर रहे होते हैं? बैग में कर रहे होते हैं ना, बिन्स में बैग, और बैग में प्रॉपर सेग्रीगेट करते हैं। तो कितना फिल हो जाना चाहिए कि उसके बाद हम इसको टाई कर देते हैं, क्लोज करते हैं 3/4। या फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपकी जब जो है आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो आपको 2 टाइम ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। लाइक कि या तो आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है उस समय आप जो है अगर आपका 3/4 नहीं हुआ है पैक, उसके बावजूद आप उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद प्रॉपर उसमें आप डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे और वहां पर तब नया बैग आप लगाएंगे। और अगर 3/4 हो चुका है आपके ड्यूटी टाइम पर तो आप उसको चेंज कर देंगे। क्लियर? और उसके साथ जो हमारा केमिकल वेस्ट है, मीन्स जो हमारा येलो बैग में जाएगा वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट, उसके बाद जो हमारे बैग और में जाएगा केमिकल वेस्ट। ठीक है? तो येलो बैग में हमारा केमिकल वेस्ट, कौन सा केमिकल वेस्ट जाता है? जो भी हमारा केमिकल वेस्ट होता है वो सारा हम बैग में रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसके लिए एक सेपरेट बैग रखेंगे। लाइक कि ओटी में अगर डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के बाद वहाँ प्लेसेंटा वगैरह रिमूव होता है, तो उसके बैग में हम इसको नहीं मिक्स करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट बैग रखेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए सेपरेट सेपरेट कॉलम्स दिए गए हैं कि पर्टिकुलर, क्योंकि आपका जो केमिकल वेस्ट है वो आपका कहाँ से जनरेट हो रहा है? आपकी लेबोरेटरी से जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे सेपरेट बैग होगा। उसके साथ केमिकल लिक्विड वेस्ट को उसको आप जो है जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या बड़ी फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे ईटीपी और एसटीपी प्लांट्स होते हैं, और अगर नहीं है तो वहाँ पर वो कुछ और जो है उसके लिए मैनेज करते हैं कि कैसे जो है लिक्विड वेस्ट को आपको डिसइंफेक्ट करना है और प्रॉपर फ्लश करना है। तो यहाँ पर कोई प्री ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज विद अदर वेस्ट वाटर। उसके साथ डिस्कार्डेड लाइनिन, मैट्रेस, बेडिंग्स कॉन्टामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो इसको आप फर्स्ट क्या करेंगे, आपकी
जो हमारा वेस्ट है, हमारा येलो कैटेगरी में 7 टाइप ऑफ वेस्ट है। तो यहाँ पर हम डिस्कार्डेड लाइनेंस वगैरह इसको डायरेक्ट हम बैग में नहीं डालेंगे। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कैटेगरीज, ठीक है, कि टाइप ऑफ वेस्ट की कौन सा वेस्ट आपकी किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, बट उस कैटेगरी में फॉलो कराने के लिए आप उसको कैसे प्री ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम लाइनेंस वगैरह को प्री ट्रीट करेंगे, नॉन क्लोरीनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन, ठीक है, कि नॉन क्लोरीनेशन से करेंगे। लाइक कि इस समय हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो परसेंटेज है, जो उसका कंसंट्रेशन है वो डिफरेंस है थोड़ा सा, और उसके बाद तब हम इसको डिस्पोज करेंगे। उसके साथ जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट है उसको भी हम प्री ट्रीट करेंगे। प्री ट्रीट करने के बाद ही उसको डिस्पोज करेंगे। क्लियर है ये चीजें आप लोगों को कि प्रॉपर हम डिस्पोज कैसे करेंगे ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, इसको क्या करेंगे, इसको प्री ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इसको तो डायरेक्ट हम सीधे येलो बैग में और आपकी येलो बिन में रखेंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ आप लोग कि अगर हमने येलो बिन है, येलो बिन में हमने रेड बैग लगा दिया तो वो जस्टिफाई है? कई जगह हॉस्पिटल में क्या होता, कहते कि हमारे पास आज बैग नहीं थे तो दूसरे कलर की बैग उन्होंने लगा दिए होते हैं। तो ये कैसे जस्टिफाई कर पाओगे आप लोग कि इसमें कौन सा हम वेस्ट डालेंगे? बिकॉज कि अगर येलो में आपने येलो बिन में येलो बैग लगा दिया और रेड बिन में आपने येलो में आपने रेड बैग लगा दिया और रेड में आपने येलो बैग लगा दिया, वेस्ट आप कैसा डालोगे? येलो बिन के अकॉर्डिंग, और रेड में डालोगे रेड बिन के अकॉर्डिंग। और जब आप बैग टाइट करोगे निकाल करके, उसके बाद आपको तो नहीं पता कि अंदर कौन सा वेस्ट है, फिर आप कैटेगरी उसको कौन सी फॉलो कराओगे? येलो बैग को येलो वाली और रेड बैग को रेड वाली। उसके बाद जब ये फैसिलिटी में जहाँ ट्रीटमेंट होता है इनका रिसाइकलिंग के लिए, और सपोज करो कि रेड बैग में आपने प्लेसेंटा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाला हुआ है और उसको रिसाइकिल के लिए डाल दिया, तब क्या होगा? वहां पर रिसाइकलिंग के लिए जब जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे खराब हो सकते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर कि अगर कभी भी आप लोग, बिकॉज कि यहाँ पर BHA के बच्चे भी हैं, MHA के बच्चे भी हैं और सारी कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आप बैग मत लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर गलत बैग लगा दिया, आपने ऑब्जर्व किया गलत बैग लगा है, तो उससे जो है आगे चल करके वेस्ट आपका मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी में आपका किस तरीके का वेस्ट आ रहा है? यहाँ पर रिसाइक्लेबल वेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो रिसाइक्लेबल वेस्ट आपका क्या आ रहा है? कौन सा आप लोगों को बताया था पर्टिकुलर फार्मूला? PRT, प्लास्टिक रबर है ट्यूबिंग्स। तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्री ट्रीटमेंट देंगे। मीन्स जो हमारे पास प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक जो बल्क अमाउंट में होता है, वेट उसका कम होता है, पर उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और बैग 3-4 फोल्ड हुए हैं, इसी तरीके से फोल्ड करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग, इनमें से जो भी ऑप्शन आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू पहले डिसइंफेक्ट करोगे। आफ्टर दैट आप स्ट्रेटिंग और म्यूटिलेशन करेंगे। मीन्स जो IV ट्यूब्स हैं और आपके जो सिरिंजेस हैं, इन सबको आप म्यूटिलेट करेंगे, कट करेंगे, स्ट्रेटिंग करेंगे। कब? जब ये डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। बिफोर डिसइंफेक्शन अगर आपने किया तो उससे आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। और उसके साथ में आफ्टर दैट सेंड टू रिसाइकलिंग और टू रिसाइकलर, ठीक है। तो रिसाइकलिंग वाले आते हैं, वो लेकर के जाते हैं, फिर उनको हम ये प्रॉपर वेस्ट देते हैं। उससे पहले अगर आपने बिना ट्रीटमेंट के दिया उनको, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? हम इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके साथ में यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं कि ये जो रिसाइकिल के लिए हमारा ये प्लास्टिक जाता है, प्लास्टिक है, ग्लास है और मेटल्स है आगे, तो इन सबको जा करके आगे आप लोगों को अभी तक एक ही पता है टेक्नोलॉजी की, जो है यहाँ पर है कि इंसिनरेशन होता है, ठीक है, जला देते हैं जाके। बट अब प्लाज्मा पायरोलिसिस एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो काफी बड़ी मशीन होती है, वहां जाकर के सारे वेस्ट को उसमें डालते हैं और वहां जाकर के उसमें से ऐसे क्या होता है इंसिनरेशन में कि ऐस निकलती है जब वेस्ट को हम वहां पे डालते हैं जलने के बाद। बट वहां पे
ग्रैन्यूल्स वगैरह बनते हैं, निकल के आते हैं, और उससे जो है रोड मेकिंग, जो प्रियंका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो जो बाहर के कि विदेशों में रोडें बहुत अच्छी होती हैं और वहाँ पे वेस्ट वगैरह भी साइड नहीं होता, तो जनरल वेस्ट हुआ या हमारा बायोमेडिकल वेस्ट हुआ, इस ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, तो उसको ट्रीट करते हैं प्लाज्मा पायरोलिसिस में, और इस तरह से वहां पर वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन हो रहा है और उसके साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और रोड्स वगैरह भी बन रही हैं। तो इस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और प्लाज्मा पायरोलिसिस की अभी जो है इंडिया में 2 जगह पर जो है इसको इंस्टॉल किया गया है, एक भोपाल में और एक पुणे में, और दिल्ली के लिए प्रपोजल गया हुआ है, आई थिंक की आने वाला है वहां का। तो लेकिन इसके लिए क्या है मैम कि जो एक बार इस मशीन को अगर स्टार्ट कर देते हैं लाइट से, उसके बाद इसमें वेस्ट इतना चाहिए कि उससे फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है और उसी से अपना जो है वो स्टार्ट रहती है। तो इसके लिए अगर एक मशीन दिल्ली में लगेगी तो दिल्ली के सराउंडिंग जो भी है, मतलब देहरादून तक का वेस्ट वहां जा करके उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी में हमारा क्या आ रहा है? एनर्जी सारी डाउन होगी। लंच नहीं किया किसी ने? यहाँ पे आपका मेटल साफ आ रहा है। ग्लास साफ भी होता है, ग्लास ब्रेक करता है, उसको भी साफ होता है नहीं। यहाँ पर मेटल साफ आ रहा है। मेटल साफ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इस बॉक्स में हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑटोक्लेविंग है, ड्राई हीट से जो है स्टेलाइजेशन, उसके बाद जो है सेटिंग और म्यूटिलेशन, और उसके साथ इनकैप्सुलेशन कट करके प्रॉपर, उसके बाद उसको जो है हम कंटेनर में रख के, आपकी जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तो गाड़ी आएगी, गाड़ी ले जाती है व्हाइट बॉक्स, बट जो इंटीरियर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर जब ये बॉक्स फिल हो जाता है तो वहां पर उन्होंने पिट्स बनाए होते हैं, और पिट्स में जो है वहां पर इसको डाल करके और पैक कर देते हैं। और अब तो वो लोग बॉक्स में पिट जो है डालते हैं सारा मेटल्स, शार्प मेटल्स, और उसके बाद उसको पैक करते हैं। उससे पहले क्या था कि उन्होंने प्रॉपर सीमेंट की पिट्स बनाई होती है, और पिट्स बना करके उसको पूरा सीमेंट से ऊपर से कवर कर देते हैं, और एक छोटा सा होल सा रहता है, और उसी से सारा मेटल साथ उसके अंदर डालते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर मैनेज करते हैं। और उसके बाद जो है फाइनल डिस्पोज करने के लिए जो है, जो हमारी रिसाइकलिंग की जो कंपनीज वगैरह हैं वो प्रॉपर कलेक्ट करती हैं। उसके साथ में इसको रिसाइकिल में डिसइंफेक्ट करने के लिए कई जगह गवर्नमेंट फैसिलिटी में बहुत इजी वे किया हुआ था कि जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है, डिसइंफेक्ट हम उसी से कर रहे हैं। तो वहां पर उन लोगों ने मैंने सारा वो जो हमारा मेटल साफ है, जो ग्लास साफ है, ब्रोकन ग्लास वगैरह, तो उन्होंने हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना करके बकेट में रखा हुआ है, या फिर बकेट में, और उसके ऊपर उन्होंने एक प्लास्टिक की वो छन्नी सी जो आती है उसको रखा हुआ है, वो टिप है, और उसी में प्रॉपर वो ब्रेक करते रहते हैं, नीडल्स वगैरह सारा डालते रहते हैं, और उठा करके वो फिर सीधा डिस्पोज करने के लिए भेज देते हैं। इस तरीके से डिसइंफेक्ट भी हो गई और प्रॉपर वो मैनेज भी कर रहे हैं। ये हमारे इंटीरियर में चक्राता साइड में काफी कर रहे हैं कि इस तरीके से कैसे मैनेज करना है। मीन्स की लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हो। क्या हुआ आप लोगों को? फिर से स्टेज पे बुलाऊं क्या सबको? एनर्जी आ जाएगी। अभी नहीं, अभी स्टेज पे नहीं आओगे, अभी आप लोग खुद डिमॉन्स्ट्रेट करोगे अपने आप। उसके साथ में हमारा जो ब्लू कंटेनर है, ब्लू में हमारा क्या जा रहा है? ब्रोकन ग्लास, ठीक है, ब्रोकन ग्लास जा रहा है, और उसके साथ में क्या जा रहा है हमारे यहाँ पर? कौन सी मेडिसिन जा रही है यहाँ पर हमारी? ब्रोकन ग्लास, ठीक है। उसके साथ में हमारे और
और उसके साथ में बॉडी इम्प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्री ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? डिस्पोज करने से पहले या तो हम माइक्रोवेव में उनको हीट करेंगे, डिसइंफेक्ट होंगे, या फिर हाइड्रोक्लेव देंगे, या फिर 1% हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में, और उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का? अभी डिमॉन्स्ट्रेशन भी है बाकी आप लोगों का, वहां पे पूछेंगे फिर। आपकी है सर आगे। ये आपकी टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं जो हम प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में डिस्पोज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर जब डिस्पोज करते हैं, उससे पहले तो आपका ऑटोक्लेव, तो ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव इरिटेशन, केमिकल मेथड्स, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन। अच्छा, आप लोगों ने हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव देखा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए? कहाँ पर? इंद्रेश में है। और उसके साथ इंसिनरेशन देखा हुआ? इंसिनरेशन के लिए कहाँ पर वो लोग? नहीं देखा हुआ है। तो आप लोगों ने ऑटोक्लेव, माइक्रो, कितने बड़े बड़े होते हैं वो? साइज क्या होता है उनका? इसीलिए मैंने इसीलिए तो पूछा कि जो हमारे जो बैग्स हैं उनका साइज कितना है, और आपने जो माइक्रोवेव देखा है उनका साइज कितना है। क्योंकि जो हमारे बैग्स हैं उनका स्टैंडर्ड साइज है ये, ठीक है। तो उससे बड़े ही होंगे माइक्रोवेव। यहाँ तो हमारे यहाँ लैब में भी है, नर्सिंग लैब में है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि आपका प्लाज्मा पायरोलिसिस तो यहाँ पूरे उत्तराखंड में नहीं है, तो इसलिए उसको तो आप लोग नहीं देखोगे अभी। उसके सिवा और सारे मेथड्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। उसके साथ आपकी जो बायोहजार्ड लेवल और साइटोटॉक्सिक लेवल है, ठीक है। तो आपके जो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमारी ये बिन्स भी यूज हो रही है, उसके साथ हमारे जो बैग्स यूज हो रहे हैं, वहां पर आपका जो ये सिंबल होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में जो हमारी येलो कैटेगरी है, वहां पर आपका बायोहजार्ड और साइटोटॉक्सिक दोनों ही लेबलिंग होंगी। उसके सिवा जो हमारा रेड कैटेगरी है, ब्लू और व्हाइट है, वहां पर सिर्फ आपका बायोहजार्ड की लेबलिंग होगी। सर आप फर्स्ट स्लाइड में ले जाओ, येलो वाली कैटेगरीज में। यस, हाँ कैटेगरीज दिला, पीछे पीछे पीछे। अब आप लोग यहाँ पर दोबारा से देख लो, ये स्लाइड लगा दी क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था अभी जब ट्रीटमेंट की बात हो रही थी। यहाँ पे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आपका क्या है, सॉइल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल आइटम्स आपके कौन कौन से जा रहे हैं येलो कैटेगरीज में, माइक्रोबायोट और डिस्कार्डेड लाइनेंस, केमिकल लिक्विड्स और एनिमल एनाटॉमिकल्स। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन करवाऊंगी तो उसमें फिर आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आप लोगों का? एनी डाउट्स? मैम फिर डिमॉन्स्ट्रेशन करा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को मैम ने वेस्ट में कुछ इफेक्ट करेगा उससे ज्यादा? लगेगा उसमें। और वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट को? मैम ने बहुत अच्छा एक बताया था आप लोगों को कि क्यों। जितना जरूरत है उतना और कोई स्लाइड में भी मेंशन किया हुआ मैम। मैम
मेंशन किया हुआ था, मैंने वो चीज आपने भी रिपीट करी है। वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ ये बताओ। अब ये भी बताया हमने ट्रीटमेंट में। देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन है कि वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। शेडिंग तो हम तब कर रहे हैं जब वेस्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, पर हम वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? सिंपल है, जो हमारा 10% इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको 10% ही रहने दें। 10% को 10% ही रहने दें, उसको हम किसी और के साथ मिक्स ना होने दें। ठीक है, तो आपका वेस्ट ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसके साथ और क्या था आपका, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, वो कहाँ चलती हैं आपकी, मैं बताओ। नहीं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज कहाँ कहाँ होती है, कहाँ चाहिए हमें? वहाँ पे हमको सेल को किल करना है। किस डिजीज में? कैंसर वाले पेशेंट में? कोई नहीं मैम, बैठ के तो रहेंगे बच्चे। ठीक है, तो फिर आपको ये पता है कि जब हम कीमो देते हैं, रेडियो देते हैं, वहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां और जो दूसरी ड्रग्स हैं या दूसरे जो आपके वहां पर जो आर्टिकल्स हैं, उनसे उनको थोड़ा सा दूर रखें कि उनके साथ में उनका कांटेक्ट ना हो, जिससे कि क्या होगा आपका कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स प्लस उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी आपके आइटम्स आएंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, कौन सी कैटेगरी फॉलो करेंगे, येलो कैटेगरी। ठीक है, तो जहां पर आपका जनरेशन हो रहा है वहीं पे आप प्रॉपर सेग्रीगेट करो। इस तरीके से क्या होगा, आपका वेस्ट अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। बस और क्या है, डेट आए हैं और जिनको मतलब जिनको कोई डाउट्स है या सेशन पूरा नहीं सुन पाए, आप यूट्यूब पे हमारा जो कॉलेज का चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड हमारे जो सेशन थे प्रेजेंटेशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिटन डेमोन्स्ट्रेशन, मैम ने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था प्रोसीजर्स। ठीक है, कौन से बिन में कौन सा आर्टिकल जाएगा, किस तरह जाएगा, ठीक है, वो आपको मैम ने बताया था। अब यहाँ पे 3 स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे और एक सेंटर में बना हुआ है। तो आप लोग 1 बाय 1 आएंगे। ठीक है, और मैम को रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, मतलब अब आप दिखाओगे मैम को कौन से बिन में क्या आइटम जाना है, मैम उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसी के बिहाफ पे जो कर लेगा रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, उसी की जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसमें मेंशन कर देंगे हमने रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो एक बार रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए सबका, पोस्ट करेंगे। ठीक है, और बाइंड अप करेंगे सेशन को। ठीक है, किसी को डाउट है कोई? और बच्चों टेबल पे जितना भी टेस्ट रखा हुआ है यहाँ पे वो सारा आपको किसी न किसी कैटेगरीज को फॉलो कर रहा है। तो अब आप लोगों को देखना है कि वहाँ पे किस टाइप का वेस्ट है और कौन सी कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? कोई भी वेस्ट वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे छूट जाए। जो कैटेगरीज बताई है उसी कैटेगरीज की रखी हुई है, उसके बियॉन्ड कुछ मिलता है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, जनरल कैटेगरी।